So welcome back everyone on Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे regarding your term 1 board examinations which are going to be conducted probably next month or in December. So time अब कम रह चुका है, days are less, time is less, but the preparation is not that much as it is told by many students to me on Instagram और Twitter. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अभी तक हमारा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ है, टीचर्स ने प्रॉपरली नहीं स्टडी करवाया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस आएंगे टर्म 1 में, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस नहीं है। वी आर इन अ फियर दैट हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. So many dilemmas, many problems, but the solution is only one, that is revision, recapitulation, or you can say the times you practice more, the times you get more and more progressed, that is practice. इन सभी का एक जो मैं बोलूँगा आपको यहाँ पर फैक्टर देखना है, फैक्टर यहाँ पर ये रहेगा कि अब इस टाइम पे आप जितना रिवाइज करेंगे चीज़ों को, दोहराई करेंगे चीज़ों की, यू विल रिपीट दैट मच यू विल रिटेन. अब वो टाइम गया कि आप दोबारा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट, यू आर स्टडिंग और मेकिंग नोट्स. इट कैन बी डन इफ यू आर speeden up in your studies, that is you know how you can cover your syllabus very fast, rapidly. But उसके साथ क्या होता है कि जब आप रैपिडली कोई चीज़ करते हो आपकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है. So rather going through each and every word now, it is essential that you should now practice more and more questions. You should test yourself now. It is mid-October. And in mid-October you can analyze that you have only 15 to 16 days. अगर आपकी डेट शीट आती है, supposedly it starts from first week of November, then you will be having very less time, right? So that means you have only October left with you. इसी अक्टूबर में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है. नवंबर के ऊपर अब आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते. So I hope it is clear to you that in October you are going to utilize these days in a very effectful and a very precious way, right? आप वेस्ट नहीं करेंगे इन डेज को, बिकॉज यही डेज होंगे जो आपके स्कोर को डिटरमाइन करेंगे इन द अपकमिंग टर्म 1 एग्जाम्स. Now 3 categories will be having over here. First, जिनका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, they have not touched the books also. Second category would be उनका थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है, some chapters are left. And the third category will be कि they are totally done, now they are revising with the syllabus, right? सो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए तो सबसे पहली बात यही मैं बोलूँगा कि अब हर पॉइंट को, हर चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस आपको दिए हैं, स्टडी मटेरियल अगर है आपके पास, तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. सैम्पल पेपर की बुक्स लेना स्टार्ट कर दो, सैम्पल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक्स आई वुड से, उनको प्रैक्टिस करो एंड गो विद ओनली सिलेक्टिव स्टडी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. एटलीस्ट यू कुड रिटेन दैम एंड यू कैन स्कोर वेल. एंड डू नॉट बी इन दिस डिलेमा दैट द एग्जाम्स आर गोइंग to be conducted online, that is through your PC, laptops, or by sitting at one place at your homes. No, it is going to be conducted offline. You have to go to your school. You will be provided with OMR sheets and then you have to attempt. आपको OMR sheets मतलब दी जाएगी, उसके ऊपर आपको attempt करना होगा. ऑफलाइन होगा आपका पेपर. सो ऑफलाइन है, MCQ है, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा. तो आपको अपने आप को उस तरीके से ही क्या करना है, स्ट्रक्चर आपका मतलब तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने आप को उस वे में स्ट्रक्चर्ड कर लो. You prepare yourself in that particular way. So it can only be done if you start preparing it from today, right? ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हो. You can score, full on full, but the time management वो आप प्रिपेयर करेंगे. I'll not be telling you strategy, I'll not be telling you plan, right? But it is rightly said that a goal without a plan is just a dream. So plans देखो बनाना पड़ेगा, and the plan which you can make yourself is the best one, but implementation is required. You have to be well acquainted with the point that you don't have now days left extra that you can prepare in November. राइट. सो यही अक्टूबर है 31st तक जो आपको करना है, अभी करना है. तो अगर सिलेबस नहीं है, आई अगेन से गो विद ईच एंड एवरी पॉइंट, गो विद ईच एंड एवरी
like important factor which is covering up in your book, right? Do not go with now I would say thorough study. ऐसा ना करो कि आप 10 दिन एक चैप्टर में लगा दो, you will not be able to cover up the syllabus. So इसीलिए बोल रहा हूँ कि important चीज़ों को आप देखो, प्रैक्टिस करो, राइट? और प्रैक्टिस कैसे करो कि देखो जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे लास्ट बोर्ड एग्जाम्स में, उनमें से कैसे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कवर अप हो सकते हैं 1 मार्क्स के लिए. सपोजिटली लाइक टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, राइट? सोशियोलॉजी में सपोज आपको आता है क्वेश्चन फ्रॉम अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट हाउ दे आर लिंक्ड प्रोसेसेस. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है फ्रॉम स्ट्रक्चरल चेंज, राइट? सो इट कैन बी आस्क्ड इन सच अ वे दैट you can be asked in 1 marks. इसमें से कोई भी वो पॉइंटर उठा लेंगे, although this chapter is not coming in term 1. Now talking about your demographics chapter, the second chapter of book 1, उसमें से आपको आ सकता है क्वेश्चन, राइट, about the national family प्लानिंग प्रोग्राम, राइट? वो आपको ऐसे आता है, बट इमरजेंसी वाला पूछ लेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी उसमें ऑब्जेक्टिव बना लेंगे. इन ज्योग्राफी दे कैन आस्क अबाउट एनी टाइप ऑफ, आई वुड से, द कॉन्सिक्वेंसीज, ठीक है, जो आपकी आती है अबाउट द लार्ज ग्रोथ रेट और रैपिडली जो ग्रोथ रेट हो रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है. पर उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेट्स कौन कौन सी है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन सी स्टेट में हो रहा है, लोएस्ट कौन सी स्टेट में हो रहा है, हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सी स्टेट में है, लो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सी स्टेट में है, मॉडरेट कहाँ है. तो ये स्टेट्स, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा. आप तो अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो लास्ट 10 ईयर्स में वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आए, तो उनमें आप सिर्फ उनकी फैक्टर्स निकालो, उनमें उनके फैक्ट्स निकाल लो और वो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपको करनी है. सो आई होप यू विल बी एबल टू गो विद योर सिलेबस वेरी नाइसली, बट इन अ वेरी, आई वुड से, सिलेक्टिव वे नाउ, राइट? यू हैव नॉट टू बी लाइक दिस कि यू गिव so much time for 1 chapter that you lose up with another chapters. ऐसा नहीं करना है. 4 chapters है, 4 chapters आपके ऐसे होने चाहिए कि you should be very well acquainted with each and every point. कई बार क्या होता है कि हम एक पॉइंट पढ़ते हैं और वही आ जाता है, you can just take out the right option. बट कई बार अगर आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ आपने एक चैप्टर पे इतना ध्यान दे दिया कि आप दूसरे स्किप कर गए, तो फिर you will lose the marks. तो इस वीडियो का मेन मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव ये है कि now there is नथिंग टू बी लाइक दिस कि आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ोगे, एक ही चैप्टर के ऊपर इतना ध्यान दे दोगे कि और स्किप हो जाए. यू हैव टू बी नाउ I would say well acquainted with others also, so go with selective study, right? Go with each and every chapter, revise, recapitulate and practice. This is only the way which I can tell at the moment till 31st of October. Plan yourself, plan your day, plan your studies and go well acquainted, well structured with them, and do not skip anything from the book. But you have to keep in mind that implementation is required. Implement on your plan which you have made. So with this I end the video. All the best for your upcoming term 1 examinations. I'll be making the videos on MCQs more, right? I'll be going with it. Not getting time for like making videos as the college has been started. So but yeah, definitely I have made the PPTs, will be coming soon on the channel. So with this I end the video. Thank you so much and keep preparing, keep studying.